Hello dear students, how are you? Students, in last class we had discussed the chemical properties of acid and base, and in last class I told you that in next class we had discussed strength of acid and base. Strength, for example, your and my strength, what that is, you have how much capability to do a work. Same here, about acid and base, we had discussed their strength. You had already discussed strong acid and strong base. A strong acid, that is ionized completely, strong base ionized completely, and weak acid and weak base which ionize incompletely or partial ionization takes place. Students, their strength is depend upon the hydrogen ion concentration. The strength of acid is depend upon the hydrogen ion concentration. More will be the hydrogen ion, more is the strength of acidic, that is acid will be strong acid. Ye hydrogen is high, then acid will be strong acid. Okay, and the strength of base depend upon the presence of hydroxyl ion, hydroxide ion concentration. If it will be more, then base will be a strong base. And if both are less, hydrogen ion concentration is less and hydroxyl ion concentration is less, it will be weak acid and weak base. Okay, how we measure the hydrogen ion concentration? The technique used to measure the concentration, that is called pH scale. pH scale. What is the use of pH scale? As a normal scale, measure the distance, measure the length, but the pH scale, it measure the hydrogen ion concentration. What it measure? It measure hydrogen ion concentration. ओके, अब कहेंगे सर ये कैसे मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? तो चलिए बात करते हैं पीएच स्केल में. स्टूडेंट्स, इन पीएच द वर्ड पी डिनोटेड पोटेंस. द ग्रीक वर्ड पोटेंस meaning power. जो pH स्केल है उसमें जो P वर्ड है इसका मतलब होता है पोटेंस मीन्स पावर, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं. ये जो आपकी पीएच स्केल होती है वो कुछ इस तरह से होती है. ये इन मिड ऑफ द दैट इज द मेजर 0. ओके, सॉरी, मिड दैट इज 7. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंप्लीट till 14. Then we can use 1, 2, 3, 4, 5, 5,
6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, this is 14. This is the pH scale. pH scale start from 0 to 14. Okay, the point 7 denote the neutral character. If any component have pH value 7, that is, it is neutral character, it is neutral nature, that is not the acid nor base. वो acid भी नहीं है और ना ही वो base है. From 0 to 7, it shows acidic character. What character? That is acidic character or acidic nature. Okay, and from 7 to 14, it shows the basic nature. What is the meaning? Meaning is that if any component have the value from 0 to less than 7, that will be the acidic nature. If the value is greater than 7 to less than 14, that is basic nature, and the value is equal to 7, that is called neutral nature. And next point is, how can we measure this acid is more ionized comparison to other acid? From 0 to 7, that is the decreasing order of किसका? एसिडिक नेचर का. किधर से किधर? From 0 to 7. From 0 to 7, the acidic nature of the component will decrease, and from 7 to 14, it is the increasing order of basic nature. कहाँ से कहाँ? That is the ये चीज. ठीक है. From left to right, अगर हम कंप्लीट बात करें तो from left to right, the acidic nature will decrease and basic nature will increase, and from right to left, the acidic nature will increase and basic nature will decrease. Okay, that is the pH scale. अब जैसे जो आपका मिल्क है, मिल्क का जो pH होता है वो नियर अबाउट 6.5 होता है, और जो वाटर है इसका pH जो होता है दैट इज 7.0, और जो हमारी बॉडी में ब्लड है इसका जो pH होता है वो नियर अबाउट 7.4 होता है. It means that the milk is acidic in nature, water have neutral character, and blood have basic in nature. तो अलग अलग कंपोनेंट का pH वैल्यू होती है. ये हम आपको नोट्स में PDF अवेलेबल करवा देंगे कि किसका pH कितना होता है. ठीक है. एंड दैट pH डिसाइड द नेचर ऑफ द कंपोनेंट. ओके. नाउ कम ऑन द फॉर्मूला. How can you calculate the pH value by the concentration and the other values? Okay, here the concentration of acid, you use pH,
and the concentration of base you will use POH, power of hydrogen ion concentration, power of हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इन दोनों की वैल्यू जो होती है pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। इसका मतलब मैं यहां से भी प्रूफ करूंगा कि कैसे कैसे pH बढ़ता जाएगा तो POH कम होता जाएगा। चलिए मान लीजिए pH की वैल्यू 0 है तो POH कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तभी तो ये 14 आएगा। pH मैंने 1 कर दिया तो POH कितना हो जाएगा, 13, तभी ये 14 आएगा। pH 2 कर दिया तो ये कितना होना चाहिए, 12, तब ये 14 आएगा। pH 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 11, तब ये 14 आएगा। pH मैंने 4 कर दिया तो ये कितना आया, ये आया आपका 10, तो ये आपका 14। देख रहे हैं, एज द वैल्यू ऑफ pH इंक्रीज द वैल्यू ऑफ POH विल डिक्रीज। इट मीन्स दैट as the solution will acidic nature their basic nature will decrease। जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूशन को एसिड बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। तो दैट इज pH एंड POH। हाउ कैन यू कैलकुलेट या हाउ कैन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH स्केल। ओके, अगेन one time I repeat, strength of acid and base that is measured by the pH scale. What is the pH scale? pH scale, it measure hydrogen ion concentration, where the P word denote potence, that is meaning of power, and H for hydrogen ion concentration. So it is scale is called, it measure the power of hydrogen ion concentration, so it is called pH scale। एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एसिड आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ही कम होगा एसिड आपका उतना ही वीक होगा। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एसिड आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना ये कम होगा एसिड आपका उतना ही वीक होगा। ठीक है, ये हमारी स्केल हो गई। pH स्केल में इस 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 एसिडिक नेचर, 7 to 14 बेसिक नेचर। अगर एक्यूरेट 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज करता जाएगा, और 7 के बाद बेसिक नेचर आपका इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे राइट से लेफ्ट आएंगे आपका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा और बेसिक नेचर घटता जाएगा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान से रखिएगा। 0 to less than 7 एसिडिक नेचर, 7 से ज़्यादा और 14 से कम दैट इज़ बेसिक नेचर, और 7 दैट इज़ न्यूट्रल नेचर। जैसे आप मिल्क, वाटर और ब्लड इन तीनों का pH देख रहे हैं, ये इनकी pH वैल्यू है। इट्स टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द कंपोनेंट। जैसे आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं एसिड के लिए, दैट इज़ यूज फॉर एसिड, वैसे ही आप हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं किसके लिए, बेस के लिए। एंड द होल वैल्यू pH and POH is equal to 14. By expression we can say that as the pH of acid will increase, the POH of base will decrease. Now come on the numerical points. Okay. Now question, note that two formula, pH is equal to minus log base 10 H plus, where H plus is hydrogen ion concentration, is hydrogen ion concentration। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन इज दैट इफ the value of hydrogen ion concentration
hydrogen ion concentration is 10 power 5 mole per liter, then what will be the nature of component? Nature of component. अगर कोई भी सोल्यूशन आपके पास है, कोई कंपोनेंट है जिसका pH जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10 पावर -5 मोल पर लीटर, तो उसका नेचर कैसा होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे नेचर तो निकाल नहीं सकते जब तक हमें pH नहीं पता चले। तो सोल्यूशन इसका जो होगा वो इस तरह से करेंगे, pH इज इक्वल टू -log base 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन pH इज इक्वल टू -log base 10, ओके, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10 पावर -5, यू पुट इट एंड ओके, तो देन pH इज इक्वल टू दैट इज इन 10 टू द पावर -5 लॉग के साथ है तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -5 मल्टीप्लाई विथ -log base 10, ओके, -5 मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो दैट इज 5, pH इज इक्वल टू 5 log base 10. You know very well the value of log base 10 is equal to 1. So pH will be 5. If pH is 5, then the nature of the solution will be acidic. Okay? The next other formula is hydrogen ion concentration is equal to 10 to the power minus pH. सिंपल वे, देखिए हाइड्रोजन। अब चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ये होता है आपसे कि इफ द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 6, देन व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? देन सिंपल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH की वैल्यू 6, दैट इज मोल पर लीटर। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपका POH का भी फॉर्मूला होता है, POH इज इक्वल टू -log base 10 हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाइड्रोक्सिड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस POH। यही फार्मूला आप यूज करेंगे। नाउ कम द रिलेशन बिटवीन द pH वैल्यू एंड कॉन्सेंट्रेशन। pH वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है? अब क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन A है, अब सोल्यूशन A का जो pH है वो आपका है 6, तो इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर -6। B का जो pH है वो 5 है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर -5। C का जो है वो है आपका 4 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर -4। D का है 3, तो ये कितना होगा? 10 टू द पावर -3। अब pH वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज कर रही है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है पावर माइनस में है, ध्यान रखिएगा ये जो ऑर्डर है वो किसका है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जरा आप ये बताइए हमको कि 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 2 में कौन बड़ा होगा? आप कहेंगे सर 10 टू द पावर 2 बड़ा होगा। बट हम अगर ये क्वेश्चन करें कि 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2 में कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 10 टू द पावर -1 बड़ा होगा। इट मीन्स दैट माइनस में पावर जितनी छोटी होगी
उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो कैसा है, ये ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन decrease the pH will increase। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका पीएच क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम, मतलब हाइड्रोक्स उसमें जो एसिड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर कैसा आएगा, वीक होगा। और पीएच विल इंक्रीज, पीएच विल इंक्रीज। अब बेटा अगर पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर। तो समझ में आई कि नहीं बात, वही बात वीक एसिड कहा जाए या यहाँ पे भी वीक एसिड। क्यों, क्योंकि आप 0 से 7 तक एसिडिक नेचर क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। 1 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 लेस स्ट्रॉन्ग, 3 मोर लेस स्ट्रॉन्ग, 4 वेरी लेस। तो इसका मतलब पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे जो आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पीएच वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका रिलेशन है। ये इस पे क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा कि जितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा पावर में उतनी ही पीएच वैल्यू होगी, ठीक है। और सोल्यूशन जितना एसिडिक नेचर होगा उतना ही कम बेसिक नेचर होगा, और सोल्यूशन जितना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। दिस विल डिस्कस in our next class. Thank you and have a nice day.